So this is the question number 16 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked out of the given four option which option contains the correct function header. Okay, so in order to answer this one, first of all, we should be aware what is a user defined function in Python. Then what are the function headers in user defined function? Then what are the default parameters and what are the properties they exhibit? Then only we will be able to answer these kind of question. So first thing first, what is a user defined function in Python? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, user defined function क्या है? Which are created by the programmer itself. Okay. Then there is a syntax that one needs to follow while creating a user defined function. And this syntax is it always starts with the keyword def. Def means define keyword. That means Python interpreter will get to know if a particular user defined function has been created. Then okay, then followed by name of the function. Whatever function name that you want to give, it should follow the rules of an identifier. Then it followed by parameters. So parameters in parameters in user defined function are optional in nature. That means a function may or may not have parameters. And then followed by the colon sign. Okay. Then it is followed by the several statement which is comes under the part of the body of the statements. Okay. Then we have return value. We may or may not have return values. Okay. तो अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड फंक्शन की तो पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज आर ऑप्शनल इन नेचर. Then what is a function header in Python? The first line of a user defined function is your function header. Now coming to default parameter. What are the default parameters in Python? तो Python क्या करता है आपको एक पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने को अलाउ करता है. देखिए अगर आपको याद हो इफ यू हैव यूज रेंज फंक्शन सो मेनी टाइम्स उसका पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप. तो जनरली क्या काम करते हो आप फॉर एग्जांपल आपने क्या करा रेंज ऑफ 9 तो व्हाट वैल्यूज इट गिव्स यू 0 to 8. मोर ओवर आपने क्या करा इस केस में ना तो स्टार्ट की वैल्यू दी ना स्टेप की वैल्यू दी बट स्टिल इट गिव्स यू वैल्यू 0 to 8. सिमिलरली व्हाट हैव यू डन आपने क्या करा रेंज 0, 9, 1. This function also gives you the same value which is 0 to 8. Why it is giving the same value? Because start और step की वैल्यू क्या है आपकी डिफॉल्ट इन नेचर. तो स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0 और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है +1. Since we have the default values, it allows us to multiple tasking. Okay. Now coming to let's say this question as well. Example के लिए अगर आपने क्या करा इस फंक्शन के अंदर एक सिंगल वैल्यू ही पास करी while calling a function तो उस केस में क्या होगा और वैल्यू क्या होगी न्यूमरेटर से मैप हो जाएगी और डिनोमिनेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई टेक लेट्स से मिक्स फ्रैक्शन आप वी हैव पास वैल्यू 9 तो इस सिनारियो में क्या होगा जो नम की वैल्यू है वो क्या मैप हो जाएगी आपकी 9 से और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी 1. ओके. नाउ इन केस अगर हमने क्या करा फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यू पास कर दी लेट्स से 9, 2 तो इस सिनारियो में क्या होगा न्यूमरेटर की वैल्यू विल बी मैप टू 9. ओके. एंड बट डिनोमिनेटर की वैल्यू विल बी ओवरराइड फ्रॉम 1 से 2. ओके. तो जब भी आपके अगर आपने फंक्शन कॉल किया है उस सिनारियो में अगर आपने एक वैल्यू प्रोवाइड करी है तो उस केस में क्या होगा न्यूमरेटर की वैल्यू विल बी मैप टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू. अगर आपने दो वैल्यू प्रोवाइड कराई तो वन वैल्यू विल बी मैप फर्स्ट वैल्यू विल बी मैप टू न्यूमरेटर एंड सेकंड वैल्यू विल ओवरराइड द वन वैल्यू ऑफ denominator variable. Okay, now let's see some important point about the default parameter. So this is a very important point about the default parameter. You should take a note of it in your notebooks. ठीक है. तो default parameters क्या हैं आपके it should be it or must be the trailing parameters in the function header. Okay, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू है तो सारे पैरामीटर जो उसके राइट साइड में अकर हो रहे हैं दे मस्ट हैव आल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यूज. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर कोई डिफॉल्ट पैरामीटर आपके फंक्शन हेडर के अंदर है तो उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं उसे यानी ऑन द राइट हैंड साइड दे मस्ट बी हैविंग डिफॉल्ट वैल्यूज. तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे दिस इज द करेक्ट वन बिकॉज सारे जो डिफॉल्ट पैरामीटर एक ही डिफॉल्ट पैरामीटर है विच इज ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दोनों ही पैरामीटर्स क्या हैं आपके डिफॉल्ट पैरामीटर. दिस इज नॉट करेक्ट
वाई? बिकॉज सिंस आपका फर्स्ट अकरेंस क्या हो गया, ऑन द फर्स्ट पैरामीटर इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, तो सारे पैरामीटर ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी डिफॉल्ट पैरामीटर. दिस इज करेक्ट वन. वाई? बिकॉज सारे ही पैरामीटर्स क्या हैं आपके ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स. ओके. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी ऑप्शन वन बाय वन. तो दिस वन इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज आपका नॉर्मल पैरामीटर आ रहा है डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद, विच इज नॉट करेक्ट. सिमिलरली इस केस दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट विद द सेम रीजन कि जो आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो रहे हैं वो पहले आ रहे हैं नॉर्मल पैरामीटर से. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सेम रीजन कि डिफॉल्ट पैरामीटर आ गया, उसके बाद आप नॉर्मल पैरामीटर यूज कर रहे हो. दिस वन इज करेक्ट बिकॉज आफ्टर द नॉर्मल पैरामीटर वेन एवर ए डिफॉल्ट पैरामीटर कम, उसके बाद के सारे पैरामीटर्स क्या हैं आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एंड द रीजन इज सिंपल. जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो दे शुड बी योर ट्रेलिंग पैरामीटर्स. ओके. आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हेयर इज. तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल भी सकता है. ओके okay. और इट माइट आस्क यू द सिंपल वन कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर की प्रॉपर्टीज क्या एग्जिबिट करता है. ओके okay. तो आई होप दैट्स इट फॉर द डे. कोई अगर आपको कोई डाउट है तो यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स.